Hello everyone. Today I am here to discuss certain generally accepted accounting principles of accounting that in short we know which is called as GAP. These are the principles without which you will never be able to understand what is accounting and how to do the practical work even. This is the principles which will help you to understand the rules, the concept and the conventions of accounting. Now, first of all, we will understand the meaning of generally accepted accounting principles, that is GAPs. GAPs include principles, concept and conventions. These are the three words which we will understand a bit later in the video. Actually, these are the basic rules और द बेसिक पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एवरी वन मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर बिजनेस. सो हाउ विल दे डू इट with and what are the criteria, what are the rules, what is the method. You should be knowing the method of doing everything. So these are the principles which are going to give you the methods and the rules of doing accounting. They are the general guidelines, they are the guidelines to prepare financial statement. What are financial statements? The statements which are prepared in accounting. This is the last chapter which you are going to do in class 11th. That is the accounting financial statement, which is the which will show you the end result ki what is the profit and what are the assets and the liabilities of the business in the financial statement. So as per Indian Institute of Chartered Accountant, has there are certain standardized rules which we have to follow for accounting. In the same way, in companies account also there are certain standards, rules and regulations which are being set up. If they say, for example, if we are opening a company, so what are the rules and regulations which we have to follow to maintain the accounts, or to find out how are we going to find the profit or the loss. So all these rules and regulations are which we do it with the help of these gaps, these generally accepted principles. मतलब कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, ऑल दिस, इन सब के लिए कुछ सेट रूल्स हैं. और वो राइट रूल्स हमें कहाँ मिलते हैं? इन गैप. सो now what is the meaning of accounting principles, concepts and conventions? देखो, according to American Institute of Certified Public Accountants, principle of accounting are general rules or regulations adopted or proposed as a guide of action as a settled ground on the basis of conduct of property. तब ऑल ओवर देखो, ग्लोबली कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि डेबिट क्रेडिट है उसका रूल क्या है. ग्लोबली एक रूल बनाए गए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं. वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमको गैप में मिलते हैं जिसके हेल्प से हम सारी अकाउंटिंग करते हैं. सो अगर हमें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है तो यू विल नेवर बी एबल टू डू अकाउंटिंग, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या एक्शंस करने हैं, कौन से मेथड यूज़ करने हैं. ये यूनिवर्सली है कि असेट्स को क्या किया है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ असेट, लाइबिलिटी, इनकम, गेन, ये सब होते क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है. ऑल दिस वी स्टडी इन दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये सब अगर हमें यही नहीं पता होगा, हमें बेसिक रूल्स ही नहीं पता. अगर आपको हम कोई गेम भी खेलते हैं उससे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, तो अगर हमें रूल्स ही नहीं पता तो हम गेम कैसे खेल पाएंगे. इन द सेम वे इसमें भी अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट में भी आपके कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए गए हैं, ग्लोबली सेम होते हैं, तो वो हमको फॉलो उनको जानना बहुत ज़रूरी है. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब मेथड टू कंडक्ट ऑल द प्रैक्टिसेस, हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे. जैसे रिकॉर्डिंग होता है कि पहले हम जर्नल बनाएंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे, फिर हम ट्रायल बैलेंस. तो इट इज़ अ रूल. सबसे पहले जर्नल बनाना है, उसी के बाद हम लेजर बना सकते हैं. तो ऑल दीज आर रूल्स. तो ये रूल्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द अदर इज़ अकाउंटिंग conventions. Up first we will understand the meaning of accounting concepts. These are the basic assumption or fundamental prepositions within the accounting which
accounting operates. So there are the certain general rules and regulations जो हम follow करते हैं to prepare my financial statement. मैंने बताया financial statement क्या होता है, एक ऐसा account है जो which will inform you about the profit or loss of the business, या बिजनेस में कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए देर आर सर्टेन डिफाइंड रूल्स, वो रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, दैट आर known as accounting concept. This is what day one I told you कि if you really want to be good in accounts you should understand the concept of accounting. So यही कॉन्सेप्ट हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, अभी आई विल टेल यू इन द लेटर वीडियोस, कि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग कर पाएंगे. देन नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. इसमें क्या होता है, सी अकाउंटिंग रूल्स जो है, रूल्स सेट होते हैं, पर कन्वेंशंस क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से अगर हम अपने रूल्स को चेंज कर दें, हम अगर अपने रूल्स को चेंज करें, अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करें. जैसे आई विल टेल यू कि इंडियन कंपनीज एक्ट जो पहले बना था, इट वाज देयर इज़ एन एक्ट. क्या होता है, एक लॉफुल जब लॉ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो उसे हम एक्ट बोलते हैं. तो ऐसे ही कंपनी को चलाने के लिए एक एक्ट बना था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू ओपन अ कंपनी, सो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स. इफ़ यू डोंट फॉलो दोज रूल्स तो आप कंपनी नहीं खोल सकते. फिर एक और एक्ट बना, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अभी लेटेस्ट 2013. उसमें कुछ रूल्स चेंज किए गए, तो कन्वेंशन हुआ कि देयर वाज सर्टेन कॉन्सेप्ट जो पहले थे इन 1956 के में कंपनीज एक्ट में, फिर उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से दे वर चेंज्ड. समझ लो, दे वर चेंज इन द अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट. पहले की लोग, जैसे अगर हम नॉर्मल टर्म्स में ही देखें, देर वॉज सर्टेन कन्वेंशंस, जो प्रथाएं, इन हिंदी वी कॉल कन्वेंशंस एज प्रथाएं. तो देर वॉज सर्टेन कन्वेंशंस विच हैव बीन चेंज इन इंडिया टू. जैसे गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट और दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी, बट थिंग्स आर चेंजिंग. इन द सेम वे अकाउंट्स में भी देर वर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच वर मेड बिफोर, but they are conventioned, means they are changed now as per the latest requirements. So next are, what are the features of accounting principles? फीचर्स, जैसे यू नो नेचर. फीचर्स क्या है, फर्स्ट फीचर है कि इट इज़ अ मैन मेड. ऑल द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आर मैन मेड. गॉड हैज़ नॉट मेड एनी फीचर और अकाउंटिंग के कोई रूल्स की डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. दिस इज़ नॉट मेड बाय गॉड, इट इज़ मेड बाय मैन. इट इज़ फ्लेक्सिबल, वी कैन चेंज. जैसे अभी लेटर यू विल इन दिस क्लास ओनली यू विल स्टडी अ चैप्टर डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है कि किसी भी असेट की वैल्यू कितनी कम हो रही है. सो देर आर 9 मेथड्स टू टेक आउट द डेप्रिसिएशन. तो which method you are using, you can change the method also. So it is flexible as per your requirement, and these principles are accepted by everyone. That is why they are known as generally accepted principle. You can little bit change the convention of it, change the method of it. method अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कोई एक method यूज़ कर रहा है तो आप दूसरा method, but principles are normally generally accepted by everyone. Next, what is the necessity of, what is the requirement of accounting principle? Accounting information is better understand if it is prepared by the following set of accounting principles uniformly. It means that the same accounting principles are followed by the entities in preparing the financial statement. Means if I am making the financial statement of my company, then it would be followed by the same principles, and if you are making, then you also will follow the same principles. So there would be a meaningful information shared between both of us. अगर हमारे प्रिंसिपल्स ही अलग अलग होंगे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, बहुत डिफरेंट होगी और एक दूसरे को समझ में ही नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, इट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू इफ आई कॉल चपाती रोटी एंड आई कॉल राइस चावल, but you do it in the other way. You call chawal as chapati and you call chapati as rice. So it is so confusing na.
सो देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स कि चपाती रोटी को ही बोलते हैं और राइस चावल को ही बोलते हैं. तो इन द सेम वे इन अकाउंटिंग ऑल्सो देर आर सर्टन जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स विच हैव टू बी फॉलोड बाय एवरी वन. हम उसके मेथड्स को कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज द कॉन्सेप्ट विच वी फॉलो. द बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन थिंग, सिंपल सी चीज़ें. आई टोल्ड यू असेट्स. तो एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का कि वेन एवर द असेट इंक्रीजेज दे आर डेबिटेड एंड वेन एवर दे आर डिक्रीज दे आर क्रेडिटेड. तो दिस कॉन्सेप्ट कैन नेवर बी चेंज्ड. This is the principle which will be followed by everyone, accepted by everyone कि एसेट बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे और एसेट घटेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू the different types of accounting principles and concept in the later chapter, but you have to understand कि this is very important. First you have to understand कि what are principles, what does generally accepted principles means, then only you will understand the chapter better. Thank you for now.